and you have to identify from which movie it is. Okay? It's quite easy, right? You can do this. So, मैं कुछ movies के dialogue बोलूँगी and आपको बस पहचानना है कि वो किस movie का dialogue है. But the condition is you cannot say it loud directly. You have to tap your table. Okay? जिस table से ज़्यादा tapping की आवाज़ आएगी, I'll go there and I'm gonna ask answer to them only. So shall we start? Yes? Where's the energy, girls? Yes? Thank you so much for this enthusiasm, I would say. So let's play the game. And the first dialogue is कितने आदमी थे? Yes, table number 2. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. Yes, table number 1. Shahenshah is the right answer. You're getting this point. And the third dialogue is Mugambo Kushwa. Table number 2 from this side. Mr. India is the right answer. You're getting this point. Okay, table number 2. Galat jawab. Anybody else? You want to answer? Yes, ma'am. Bilkul galat jawab. Anybody else who want to answer? Yes, ma'am. Dil to pagal hai is the right answer. You're getting this point, ma'am. And let's clap for her, everybody, because this is the correct answer. Okay, let's just move forward for the next dialogue is Picture abhi baki hai mere dost. Yes, ma'am. Is the right answer. You're getting the second point. Amazing. The next dialogue is How's the Josh? Yes. Uri is the right answer. दोनों के बीच tie चल रहा है. And let's see who's gonna win the show. Okay. The next dialogue is थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब. Yes, ma'am. Dabak is the right answer. Next dialogue is एक बार जो मैंने commitment कर दी. Yes, ma'am. Wanted is the right answer. थोड़ा जल्दी table tap करना start करना पड़ेगा तभी मौका मिलेगा आंसर करने का. Okay. And the next dialogue is All is well. Yes, ma'am. 3 Idiots. Okay, यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से हाँ table tap करना sir. My goodness. What you girls are doing, huh? It's a tie again. Let's see who's gonna win. Another dialogue is Don't angry me. Come on. Yes, sir. Yes, sir. Tell me. Sir, बता रहे हैं. Rowdy Rathore is the right answer. Nobody is getting this point, but क्योंकि 2-3 लोगों ने एक साथ बोला है. So the last dialogue is, and let's see who's gonna answer it correct. Jasimran Jaji. Yes, ma'am. DDLJ, and you are winning this game. Everybody, please clap for her. And I'm coming to you. I would definitely want to know your name and what you actually do. And I'm from Pune, Maharashtra. I'm an educator, and yeah, that's about me. I love teaching children. I love being with children. And else than that, your hobbies? Being with children and being there, that's children, and that's my passion. Oh, you dedicate too much for the children. How many children you have? Don't tell me 100. I was about to say 240. My God! Everyone, big round of applause, because she's the lady who's counting all the children as so that's really nice to meet you, ma'am. Great pleasure to meet you. And I'm working with PricewaterhouseCoopers Private Limited, popularly known as PwC. And as a passion, I'm pursuing fashion and glamour, and I'm a lifestyle influencer. Currently this is Vogue Star India 2020. my elder sister is also working in PwC. Yeah, nice to meet you, ma'am. Yeah. So, you are girls, yeah? You're so energetic, so lively persons I can see, lively person I can see in front of my eyes, and I'm liking all the faces. The next game is a tongue twister. And tongue twister is going to be really easy. The first tongue twister is lower roller, upper roller. You have to say it 5 times continuously.
Who wanna try this first? Lower roller, upper roller. You wanna try? Okay, so fit. Women international referee of this game from India. Wow, wow, huge round of applause for her. This is in mic. Lower roller, upper roller. 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 My God, everyone, a huge round of applause for you as well. What's your name, ma'am? मेरा नाम मनीषा है, मनीषा डांगे. मैं बास्केटबॉल प्लेयर एंड कोच हूँ. Playing for India and coaching for India. And national and world record holder हूँ. Wow! Everyone, a huge round of applause for the basketball lady in the house, I would say. Player. She's gonna play, huh? Today? Yes. Sure. Play well. Thank you so much, ma'am. Nice to meet you. And sure. Khamagani everyone. Come on, baby. I'm Ranjita Tamar, Director of Kidsy Preschools. I'm from Rajasthan, Ajmer. क्या बोलना? हाँ जी. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. 5 times. पढ़ा. अरे बहुत easy है. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पूंछ ऊंची. ये तो शॉर्टकट मार दिया. Like that. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊँट की. ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊँट की. ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंची. Oh, you're missing it now. Thank you so much for playing, but you did it so well. Anybody else want to try this? Yay! Awesome. Wow. What do you do, by the way? I'm advocate in the court of law and social worker. Oh. Fight for poor ladies and children. Oh, In that's the law very nice. justice. Everyone, a huge round of applause for the lady in black. Yes. So you have to say it 5 times. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. ऊँची. ऊँची. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, पूंछ ऊँची ऊँट की. Wow, 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 wow. Practice करते हैं आप घर पे इसकी? Thank you so much. You played so well, so well. Nice to meet you, ma'am. I can see so much of perfection here, and all the perfect ladies are just in front of me. I'm so blessed to be part of this day, and thank you so much, everyone. I'll give you one more tongue twister if you are ready to play more. You're ready? I'll give another one. Okay, cool. So the next one is पके पेड़ पर पका पपीता. पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता. ये किसको आता है बोलना? 5 बार कौन बोलेगा? पूरा ट्राई. ना आप ट्राई करेंगे? नहीं? Oh, you are trying. And an educator, and a national level swimmer, and an ODC dancer, and I have won an award from the then President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Wow. Thank you. Multi-talented lady in the house, I would say. Thank you so much. Yeah. So you have to say. मैं ही भूल गई कौन सा. पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े. नहीं, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता. ऐसे Can you repeat that? मैं भी भूल गई. Actually, you have also forgotten it. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता. पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता. ना. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता. पका पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता. पका पेड़ पे पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता. Yeah, you have to say this 5 times. Oh my God. Okay. Easy. पका पेड़
पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता. I think 2 times is enough for this one. But you tried so well. Thank you so much for playing, and nice to meet you. You're looking so pretty. So everyone, now we are going to welcome our guest, Professor. Everyone, we are going to welcome our guest, K. Pushpaleela, ex-Minister of Andhra Pradesh, Professor. Everybody, with the round of applause, please welcome the beautiful lady. Gul ko Gul Mubarak, Gul ko Gul Mubarak, Gulzar बनकर, Gul ko Gul Mubarak, Gulzar बनकर आपका आज के इस खूबसूरत इवेंट में स्वागत करते हैं हम. फूलों का हार बनकर, फूलों का हार बनकर, फूलों का हार बनकर. Everybody, come on, please welcome Professor Director Geeta Singh, Director, Center for Professional Development in Higher Education, UGC, HRDC, University of Delhi. Everybody, please welcome Geeta Singh ma'am, and along with her we have K. Pushpaleela ma'am, ex-Minister of Andhra Pradesh, and so many of guests will gonna join us in a while. Beautiful women's are here, or the lovely ladies are here, who have achieved so much in their own life. They have done lot of great work. Also, they are so much inspired by you ladies, and I would like to talk all of them, and I would like to know about all of you. I am awarded by Bharat Bhushan Samman. Wow. Yeah. Thank you. I am from Uttar Pradesh, from district Eta. I am a head teacher in UPS Composite Art Block, Shritarpur district Eta. Thank you so Yeah. much, ma'am. Thank you so much for coming. And Ritu Srivastava. I am a principal at Sri Chaitanya Techno School, Noida. I am an educator and I am an auditor in education, a lead auditor from QCI. And my passion is to educate the young learners, to make them ready for the future and whatever they want to do, excel in their chosen field. thank you so much, ma'am. Thank you so. Hi everyone, I'm Tehseen Zaidi. Currently, I am heading communications for a Swiss-based multinational called Syngenta India Private Limited. I am a media and communications professional, work with NDTV 24/7 for 10 years. This is my new shift, and a strong message which I always believe in and I want all of you to follow is that empowered women empower women. So let's create a chain of empowered women who can empower others, because working towards empowering women and helping them achieve the leadership role, because that is what I feel that women lack, is my mission, my passion and my project. With this, thank you so much for hearing me out. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm from Kashmir. Wow. I'm a social activist, and nowadays I work for Ghulam Nabi Azad as his chief spokesperson. And I have worked in Saudi Arabia for the women's empowerment, and in Kashmir, where it's a lots of problem for the females, where they don't let the females to come out. But I work for the females to come out, speak up, and make your platform. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, and you are doing such a great work. I come from Mumbai. I'm basically a cosmetologist, and as a cosmetologist, obviously skin is my passion. Apart from this, I am also a Lions member. So being a Lions member also allows us to do a lot of social work. So when I call it social work, it also means adopting schools, adopting small villages, wherein we can actually empower women, actually give them the needful, whatever is required with respect to school bags, books, pencils, etc. So in this way, I believe that we are kind of empowering people to learn more things, Right. also to understand what exactly happens in society. Right. Thank you so much. Thank you so much for that. I am Rashi Kapoor. I'm from New Delhi. I'm a double cancer survivor. And after my treatment got over, I decided to found this patient support group of Sachin Sarkoma Society. So we do work with the All India Institute of Medical Science,
And our vision is to spread awareness about rare tumor sarcoma, which I was diagnosed, and we build companionship with their affected families. We have so far been able to make an impact on around 7,000 patients, and our vision is to remove the fear of these rare tumor sarcoma. Rayo Sharma, advocate by profession and social worker. We have organized so many marriages of girls who cannot afford money, who cannot afford their marriages in Dwarka itself 2 times. And I am helping the children, ladies, poor ladies in the court of law to give them justice, for fight them to get the justice in the court of law. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. What she actually do? Hello everyone, I am Salman Sarek. I am an active published author. I am a journalist. I am associated with Times of India, and along with that I am a social worker too. Back then in 2019, I started an NGO. Basically, I went to a slum to cover a story, and then I saw the environment where the children was been growing up. Then I took the inspiration from my father. He is no more in the world. He used to say that education is the thing that one can do, like it's a kind of weapon, we can say. And I started with 5 kids. I approached each one of them. I went to them, I personally talked to them. Basically what they do, either they work as a daily wage worker, or their parents are maybe rickshaw puller or something like that. I started with 5 kids, and now proudly I can say there are 50 kids, and they are now coming and studying, and they are dreaming of, like they have a vision nowadays, and they want to become like, ma'am, we want to be like you. Ma'am, we want to speak on mic like you. I'm a public speaker too, so they are very inspired by each one of us in our team, and now they have vision and goals in life. So that is the change I have been making throughout. Well done, well done. How old are you? I really want to know. 24. 24 only, and she's doing such a great work. My goodness. Amazing. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Karishma Jain, founder of World's Vision. It's basically a wealth management company. Everyone here is from social media or something like a social worker. And I'm into money management. So completely different from everyone. सब लोग पैसा कमाते हैं, पर ये नहीं पता पैसा बचाना कैसे है। ये लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है, इसमें सबसे आगे लड़कियां ही हैं बचाने के मामले में। Nowadays it's different. Now everyone wants to spend money rather than saving money. So I'm promoting how to do financial planning and how to manage your money and all those concepts in India. And I have been awarded as India's second microfinancial planner by Business Team. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. And I would give you a compliment of smart lady. In these introductions, I just feel what a great day this is going to be present in this crowd. My name is Shriyal Sethumadhavan. 16 years into journalism with B2B media publications. I run my own company today, Panoptic Solutions, where I meet end-to-end content and communication needs of not only media companies but even corporates of all kinds and public relations, and I help them connect with their clients and stakeholders in the most effective way through the mediums of print, digital and B2B conferences. So that is it. Thank you very much, ma'am. Nice to meet you. मेरा नाम मनीषा डांगे है। मैं इंडियन रेलवेज में वर्क करती हूँ और मैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर एंड कोच हूँ। मैं ग्रासरूट लेवल पे बच्चों को सिखाती हूँ। मेरे पास 100 चिल्ड्रंस हैं जिनको मैं सिखाती हूँ, और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मैं फ्री बास्केटबॉल कोचिंग देती हूँ, और उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स अभी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, और होप फॉर द बेस्ट। आगे मुझे लगता है इंडिया भी रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल। सो Thank you very much, ma'am. My regards to Chief Guest and Guest of Honor, Honorable Chief Guest and Guest of Honor. So, my name is Captain Shatabdi Chatterjee. I am the first lady commercial pilot from Kolkata. Wow! Presently, not presently, but for last 24 years, I have been running an institute. Its name is Horizon,
And Horizon is something like that who gives wings to the aspirants who want to join aviation. And I am 3 national award winner to give my work for aviation industry for training and placements. And we have been provide for last 24 hours trained manpower to all national and all domestic and international airlines. And I'm an author also, and I'm having my own YouTube channel on aviation. The name of the channel is Captain Shatabdi Chatterjee. That's about me. Very nice. Thank you so much. And this, I would say this Shatabdi will never stop. Good afternoon, friends, lovely ladies here and distinguished guests. I am Nawaz Damania. I am a PR and a communication specialist, but I have nothing to say about myself. I only want to dedicate whatever awards I get, which I have always been telling. It's all thanks to my mentors and my team members who have always supported me. Because singularly you can't achieve anything, and to just say that I have done this doesn't, it's not worthy of all the other people who have supported you in your journey so far. So I would like to take this opportunity to thank my mentors, starting from Nani Palkhiwala, JRD Tata, and Ratan Tata, and many more, and currently Dr. Sumit Das, my CEO of my company I represent. So thank you to all of them, and thank you. And I feel so, humbled to be in. I have nothing to say, hearing so many achievements by so many worthy, beautiful ladies, that I feel I'm totally incapacitated for any words, except thank you for allowing me to be here and to share the audience with you. Thank you. Thank you so much, ma'am. I am Dr. Satya Sharma from HP. I am completed my doctorate after retirement. I served in revenue department for 30 years. And I am working for ladies who are poor. I help them in office time, or now I am a social worker. And I also received Bharat Gaurav Ratna Award from Shri Govinda Ji on 25th October in New Delhi. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. The lab lightning, and for the lab lightning, I would like to call our honorable guest on the stage. I would like to call on stage K. Pushpa Leela ma'am. Kindly please come up, the ex-minister of Andhra Pradesh. Also, I would like to call on stage Geeta ma'am, Dr. Geeta ma'am. Everybody with the round of applause, please welcome her on stage. Also, I would like to call on stage Dr. Neelam Gupta ma'am, founder, Arrow Foundation Global Goodwill Ambassador of GGA. Everybody, I request for the melodious Vandana from the sound. And everyone, kindly please stand up at your own position. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय. Come on everyone, once again a huge round of applause for this beautiful moment, and that's how we start every beautiful work in our day. गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you so much, ma'am. Thank you so very much. And thank you so much, everybody. Now you can take your seats. Everyone, please sit down.
गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. And let's start this beautiful event all together, everyone, and let's move forward. Zola Talia once again, everyone, for the organizer of the event, as we reveal in the excitement of this extraordinary day. It's important to take a moment to recognize the driving force behind this spectacular event. The person we are about to welcome has not only envisioned this celebration but has worked tirelessly to make it a reality. It is both a pleasure and a privilege to welcome the visionary leader and CEO of High Edge Media, Mr. Gaurav Gautam. When it comes to lead a prime and proficient voluntary non-government organization and running a leading branding and PR company, Mr. Gaurav Gautam, founder and national president of ICANN Foundation, leaves no stone unturned to make all the impossible happen. Mr. Gaurav Gautam, accomplished organizer of this remarkable event, whose dedication and meticulous planning have culminated in this day celebration of excellence. With an impressive background and 5 years of valuable experience to helm of High Edge Media, everyone, let's welcome here Mr. Gaurav Gautam. And now I would like to call our honorable guest here, and I request to Mr. Gaurav Gautam, kindly please felicitate all the beautiful guests out here. And first of all, I would like to call on stage the beautiful lady, none other than K. Pushpalila ma'am. Everyone, she is the ex-minister of Andhra Pradesh, was a minister of Women and Social Welfare Department. Even Mr. Gaurav Gautam, please felicitate the beautiful lady Pushpalila ma'am with the award and the flowers. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you so much, ma'am. It's a moment. Prior to joining CPTHE in the year 2015, she also worked as a director, professor at UGC, HRDC, BPS, Mahila Vishwavidyalaya, Sonipat, HR, Haryana from 2012 to 2015, and as a teaching faculty at the University of Delhi from 1999 to 2012 and CCS. सबको नमस्कार. मेरा नाम पुष्पलीला है. मैं 33 इयर्स में मिनिस्टर बनी. नो बैकग्राउंड, नो गॉडफादर, फ्रॉम तेलंगाना. उस टाइम में चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट में फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री बनी थी मैंने. तो सवाल ये है कि राजकीय व्यवस्था में महिलाओं का काम नहीं है, आसान नहीं है, वो नहीं कर पाता है. तो वैसे माइंड सोसाइटी समाज में है, मगर समंदर में जब जीवन में डाल देते हैं वुमन को हर चीज़ में, तो तैरना अपने आप जो प्रकृति ने सिस्टम ने हमारे को सिखाते देता है. तो उसमें मेरा पॉलिटिकल करियर भी वैसी बड़ी मतलब क्या बोल सकती हूँ, इतना तैरना नहीं आने वालों को लेके जाके समुद्र में डाल दिया तो कितना मुश्किल होता है हर जगह. तो मेन की सोसाइटी है, इसमें जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स औरत इज सेकेंडरी मानते हैं, खुद का आइडिया नहीं रहते हैं, डिपेंडेंट्स है, पैराशूट्स है, जो उनकी जो सोच विचार है, मगर इसमें अपन बदलाव लेके बदल दिया है हमने हमारा समाज को. आज तक तो इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक हमारा जो भी है हर सिस्टम में, हर में जहाँ महिला हो वहाँ सुरक्षित रहेंगे, शांति रहेंगे. और देश में
जितनी कि हमारा इंडिया भारत देश में ये संस्कृति है कि महिला जहाँ रहेंगी वहाँ हर तरह से अच्छा रहेगी, मगर हर चीज़ में होंगी, मगर जो स्ट्रगल रहती है ना, जैसे हाउस वाइफ बोलते हैं ना, उनको नीचे दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अगर सोसाइटी में हाउस वाइफ की जो कैरेक्टर है, वो जो सोसाइटी को, अच्छे बच्चे को, अच्छी परिवार को सोसाइटी में देने के लिए एक माँ का रोल भी इतनी महत्वपूर्ण है। और उनसे भी हट के हम भी इक्वल के लिए जो फाइट करते हुए एजुकेशन में आ गए हम लोग। हर जैसे आसमान में तक भी आधा है पॉपुलेशन में, तो हर सब्जेक्ट में भी हम लोग जा चुके हैं। तो अभी हमारा सक्सेस बहुत सारा है। आज हमारा जो आपका इंट्रोडक्शन में देखने के बाद मुझे लगा हम किसी में कम नहीं हैं। जो मैंने एक डिफरेंट जो सोचने में, जब हर लोग जो रहते ना, तो सोचने में थोड़ा सा डिफरेंट कोई भी सोचते रहते हैं ना, जैसे वुमेन हो, मैन, और डिफरेंट सोचने वालों का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हर लोग जैसे जाते हैं ना, जो अपन आप हमारा फ्रेंड जो करे वो ही मैं ही करूँगी, ना ना ना, थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा अपन। जैसा सेपरेट अपन का जो स्पेशल आइडेंटिटी के लिए जो महिला आज यहाँ बैठे हैं ना, वो लोग वैसे ही सोचिए। अभी आपने इतनी तक पहुँच गए हैं, वो ये डिफरेंट सोचने में आपका सक्सेस है, वो मैं मानती हूँ। अगर नहीं तो हमारे को तो सिस्टम ऐसा बना दिया है, जब बचपन से माँ से लेके अपन को जो नहीं, महिलाओं का ऐसे ही रहना चाहिए, ट्रेडिशन सिस्टम महिला के लिए रहना है, आप यहाँ ही रहना है, आपका लिमिटेशन इतना है। जैसे अपन का बाउंड्रीज तो फैमिली से बना दिया है, मगर जो बाउंड्री पार करके एजुकेशन सिस्टम से माँ बाप में भी चेंजेस आ गए। आज महिला बच्चे को, लड़कियों को भी पढ़ाने का इक्वल तो शिक्षा दे रहे हैं। मम्मी डैडी सोच रहे हैं कि पुराना जमाने में शादी जल्दी कर दी है तो एक काम हो गया, नहीं नहीं, हमारा बच्ची पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, उनकी इच्छा जो भी हो वो करने के लिए माँ बाप आज हमारे को फ्री एजुकेशन में होने दो, जो भी करना चाह रहे हम जो लिबर्टी दे रहे हैं माँ बाप, पेरेंट्स। सो उससे अपन का जो सक्सेस यहाँ तक अपन आ गए हैं। आज तक जो भी है जीवन में का एक ही समझती हूँ मैंने, ऐसे मानव सेवे माधव सेवा। जो मदर तेरेसा का वर्ड्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्रार्थींचे पेदवुल कन्ना परिचय चेतुल बिना, मतलब जो लगातार प्रेयर करते रहेंगे उससे कुछ मतलब नहीं रहेगा। आप किसी की मदद करेंगे तब आपका जीवन का जो अर्थ जो है, स्वार्थकता बोलते हैं उसको, सक्सेस, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलते हैं ना, किसी में नहीं मिलेगा। जैसे जानवर को अपन को डिफरेंसेस है, जानवर भी जस्ट अपन पका लेते हैं, घर में रहते हैं, मगर उसके अलावा वो सब अपन के जैसे ही करते हैं। मगर जो अपन का जो विचार, जो रहन सहन, जो अपन का जो मेंटालिटी, जो उनमें जो बुराई है, अच्छा बुरा सोचने में जो इंसानियत में है, मगर जो सेल्फिश सोसाइटी में कुछ काम करना है तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, वैसा सोचने का सोसाइटी में से अपन का समाज के लिए थोड़ा वक्त निकालना, एक तो अपन का करियर को बिल्डअप करते हुए समाज के लिए थोड़ा सा समय वक्त देना भी हमारा फर्ज है। क्योंकि ये पॉलिटिशियन ही करेगा, ये लेक्चरर ही पढ़ाएंगे, ये नहीं। जब स्कूल में बच्चे को दाखिल करते हैं ना, तब टीचर के बाद ऊपर डाल देते हैं, ज़्यादातर मम्मियाँ गलती करते हैं, जाके टीचर को कोसते हैं, गलत है। मगर टीचर ने इतने बच्चों को संभाल नहीं सकते, खुद का आपका बच्चा को, आपका बच्चे का क्या टैलेंट है खुद को मम्मी को मालूम है, मगर जाके टीचर के ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल सिस्टम में, तो हमारा जो लाइफ में
ज़्यादा तक स्ट्रेस जो है ज़्यादा सुबह से लेके रात में 24/7 अगर सोने के टाइम भी अपन को मिलेगा उसमें भी अपन कल के लिए सोचते हुए सो जाएंगे। अपन कल बच्चे के लिए क्या करेंगे, अपन का कल का अपन का क्या करना है, इतने टाइट शेड्यूल। मगर इतना टाइट शेड्यूल में कभी कभी लगता है कि क्यों भाई इतना टेंशन लेना है। जो हस्बैंड लाता है अच्छा पका लेना है, टीवी लगाना है, सीरियस देखना है, बस जिंदगी सुकून से चले जाएगी। ऐसे सोचने वाला भी औरत है। मैंने तो एक बार बहुत सारे इंटरेक्शन होती रहती हूँ, उन लोगों को तो जैसे फील होते हैं कि आप क्यों माँ इतना पढ़ लिया, अपने मम्मी ने इतना आपको पढ़ाया था, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बना के आपको शादी कराया था, फिर आपका करियर को आप क्यों बंद कर रहे? मैंने मेरा हस्बैंड को पसंद नहीं है, मेरा हस्बैंड को बाहर भेजना पसंद नहीं है। अरे ये क्या हो गया? जो सपना आपका मम्मी ने आपके लिए उनसे ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको पढ़ा के एक सर्टिफिकेट कोर्स आपके हाथ में देके एक इंस्ट्रूमेंटल, जैसे एजुकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के जैसा आपको देने के बाद आप एक घर में एक फ्रिज के जैसा एक आर्टिकल के जैसा छीना, वो छीना क्या है? क्या वेस्ट है। टाइम पास करना बहुत सारा और करते रहते हैं, बहुत लोग करते हैं, मर्द भी करते रहते हैं, मगर कंपेयर टू मैन औरत कभी भी बाहर की दुनिया में हो या राष्ट्रपति भी हो, वो माँ का रोल कैरेक्टर निभाएगी, वाइफ का कैरेक्टर निभाएगी, सक्सेसफुल मदर, सक्सेसफुल वाइफ, हर जगह पे सक्सेसफुल ही रहेगी। थोड़ा रोल रहेंगे, इधर उधर हो जाएंगे, कभी कभी होती रहती है, मगर सोसाइटी में आज हमारा गौरव को तो मैं तो मानती हूँ। अच्छा सोच आना सबके लिए बात नहीं है माँ, अच्छी सोच, अच्छी विचार, सोचने में रह जाते हैं लोग, मगर जो काम करने वाला रहते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा गौरव ने, हमारा बेटा मानती हूँ मैं उसको, आईकान का जो फाउंडेशन की तरफ से इतनी अच्छी प्रोग्राम कर रहा है, शाबाशी देना तालियों से उनको, जो आईकान सोसाइटी की तरफ से उनको तो अपन तो मानना पड़ेगा। इतनी छोटी बच्चा, यंग बच्चा है, एंजॉय एंटरटेनमेंट को छोड़ते हुए सोसाइटी के लिए थोड़े इतनी लोगों को एंकरेज करना, इंस्पायर करना महिलाओं के लिए, वैसे लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखना, उन लोगों को आप लोगों को कोऑर्डिनेशन करके जहाँ जहाँ ऑल ओवर इंडिया से बुलाना आसानी काम नहीं है। तो मतलब जो पहचान, जो अपन का टैलेंट, जब पहचान मिलती ना, आइडेंटिटी मिलती ना, तब थोड़ा अपन को भी थोड़ा काम करने में और मजा आएगा। हर रोज थोड़ा बूस्टिंग मिलना चाहिए। घर में तो मिलता नहीं मिलता तो छोड़िए, मगर सोसाइटी में जब काम करते रहते ना तो इतना मजा लगेगा। जो हमारा तेलुगु में एक पिक्चर आया था, किक मिलेगा मुझे तो वो किक रोजाना मिलते हैं, वही मुझे एनर्जी बूस्ट रहती है। तो जो भी हो, समाज में आजकल भी महिलाओं का संख्या 50% है, फिर भी व्यवस्था में, पॉलिटिकल में, बिजनेस में जो हम लोग फेस कर रहे हैं, इतनी फ्री हैंडली अपन का सक्सेस नहीं आ रही माँ, आना चाहिए। उसके लिए अपन जोड़ना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। आपका जो काम आपने किया है, सो आप लोग एक प्लेटफॉर्म में अभी आज मिल गए, फिर आप कहाँ की चले जाते हैं, आपका में शेड्यूल में चले जाते हैं। मगर मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो जितने लोग आए हैं आईकान फाउंडेशन की तरफ से, सब नंबर्स ले लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, हाई कांटेक्ट में रहिए। जिस काम में आप रहते हैं, आपके एरिया की तरफ से आपका हेल्प मांगने के लिए, जो काम में सक्सेसफुल लेडीज है उनसे हेल्प मांगने के लिए अच्छा रहेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है, करेंगे ना? यस, थैंक यू। एंड हमारा जो महिला बोले तो ब्यूटीफुल तैयार होना, जैसा अच्छा लुकिंग के लिए रहना। एक तो अपन को तो सुबह में शादी होने से एक कैरेक्टर, शादी होने के बाद एक कैरेक्टर, तो मतलब चेहरे में दिख जाता है वो डिफरेंसेस। मेन में क्यों नहीं दिखता है?
बोलिए। यस, मतलब भगवान ने भी उसमें भी थोड़ा सा अपन को डिफरेंट दिया माँ। तो बच्चे पैदा करना ये सब में अपन का बॉडी में जो चेंजेस आते हैं मर्दों को तो नहीं आता है। फिर भी अपन पूरा नॉर्मल में फिर अपन का बॉडी को एक्सरसाइज बस वो सब ग्लैमरली जैसा फेस शादी से पहले कैसे थे ऐसे हाउसवाइफ बनने के बाद वाइफ बनने के बाद वो मेंटेन करना चाहिए। शादी हो गया मेरा सिर्फ मेरा हस्बैंड ही देखेगा, नहीं, मैं सुंदरता के बारे में कि ये जो वुमेन का माइंड रहता है 90% वैसे नहीं रहना चाहिए। हर टाइम जब हस्बैंड घर पे आता है ना, कोई भी आएगा ना, आप किसी वक्त में देखूंगा ना आपका फेस प्लेजेंटली दिखना चाहिए। दैट इज मेरे भी तो मैं वही करती रहती हूँ। मगर दुनिया में ऐसी महिलाएं हैं घर का पूरा सारा प्रॉब्लम पूरा चेहरे पे सोसाइटी में बाहर दिखा देती है सिंपैथी गेन के लिए। क्यों भाई? जब मर्द नहीं दिखा सकते, मैन नहीं दिखा सकते, क्यों अपन दिखाना है? जरूरी है क्या? तो स्ट्रॉन्गनेस इक्वल इनटू स्ट्रॉन्गनेस, तो स्ट्रॉन्गनेस कंपेयर टू अदर मेन से अपन ही स्ट्रॉन्ग है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बस हमारा जो ये जो आज का प्रोग्राम में जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी के ऊपर, आप देखिए आपका परिवार, आपके बच्ची, आपके नेबर्स जो आपके जैसे बनने के लिए कोशिश करते हैं ना, उनके लिए अपन रोल मॉडल रहना चाहिए। सो जब भी अच्छा लगेगा। और अपन का काम करने के बाद रात में सोने के टाइम में मैं तो कलेक्ट कर लेती हूँ आज मैंने कौन सा काम किया, कितना अच्छा काम किया, किसी को हेल्प किया क्या, ऐसा कुछ सोचती हूँ ना मैंने। मुझे तो सारा दिन में यही ढूंढते रहती हूँ यूज भी कि यूज में बोलने से क्या मतलब है मेरे को? अरे आपको क्या काम है मैडम, आप चले जाइए ना, आपको क्यों पता है, आपका काम आप देख लीजिए। नो, एज ए सिटीजन उनको गलती करने वालों को रोकना चाहिए अपन, चाहे घर से लेके बाहर। तो उसके लिए तो फाइटिंग करना जरूरी है, तो करते रहना है। तो ये जो वुमेन का पावर जैसा हनुमान का पावर है, अपन खुद को नहीं मालूम है अपन का टैलेंट। कोई तो भी जरा पुशअप करना पड़ता है, जरा आपका ये टैलेंटेड है। मगर हर महिला मेरी सृष्टि में ज़्यादातर टैलेंटेड कौन होता है मेरे को? अपन ही वुमेन ही रहते। तो भगवान का ये है, और माँ का रूप से लेके हर रूप में एक ही टाइम में 10 काम कर सकते हैं। तो मैन कर सकते क्या? आप 2 दिन बाहर जाइए, ये नहीं होएगा मेरे से बोलेगा, मगर अपन संभाल सकते हैं। ये पेशेंसी के लिए वुमेन का जितना है अपन का टैलेंट भी अपन बोलना नहीं है, एंड सर्विस ओरिएंटेड रहना चाहिए। सिर्फ अपन का परिवार के लिए नहीं, वो परिवार के लिए सोचने वाला तो मेरे नज़र में तो वेस्ट है। मैं तो उनको मानेंगी नहीं, रेस्पेक्ट भी नहीं देते। आपका परिवार आपका ही अच्छा होना नहीं, बाजू वालों जैसा आपका पूर्व बच्चों के लिए कुछ सोसाइटी में जाके कुछ सर्विस ओरिएंटेड जैसा पढ़ाना, हेल्प करना, वैसा करें, उनको कुछ बढ़ाएंगे ना, तब आप गुड बोल के मैं मानती हूँ। तो आप लोग वैसे ही काम कर चुके हैं, और आगे भी आज फाउंडेशन की तरफ से आपको जो प्रेजेंटेशन जो गिफ्ट मिलेगा, ऑनर करेगा हमारा गौरव बेटा, मगर उसको लेके आप थोड़ा सा रोकना नहीं और स्पीड अप काम करना है। नेक्स्ट टाइम बेटर इम्प्रूवमेंट, आप नेशनल तक जाना है हर काम में। ऐसा है कि काम करके कोई चुप बैठना नहीं, जितना प्रमोट करना चाहिए अपने लिए, अपनी मार्केटिंग प्रमोटर बनना चाहिए, पब्लिसिटी लेना चाहिए। अदरवाइज अपन को घर से भी कोई मारेगा नहीं, क्योंकि क्यों जा रहे वही बेकार बोल देते ना। तो यू कट ऑल द वेज, मीडिया में हो कुछ भी हो, आपका जो सोच विचार है शेयरिंग नहीं जाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। सो ऑल द वेज दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आइकॉन फाउंडेशन, जहाँ इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम करते रहता है, जहाँ तक मुझे बुलाते रहते हैं, तो मैं भी आती रहती हूँ कि एक महिला एक नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे महिला 50% है, अपन आना चाहिए, हर फील्ड में आना चाहिए। मैं तो हमारा पॉलिटिक्स में भी 50%, 33 नहीं 50% के लिए मैंने फाइट कर रही हूँ।
क्योंकि वोट डालने में 50% काम आ रहा है, सीट देने में 33% क्यों भाई? तो इसके लिए भी हम लोगों का सोच बदलने के लिए मैं कर रही हूँ। तो हमारा जो है एक तो प्राउड नहीं रहना, ईगो नहीं रहना, फ्रेंडली रहना, और आज का जो कोरोना डिसीज आके वो भी लाइफ का जो स्टाइल सबको थोड़ा सा एक लाइफ कितनी शॉर्ट है, उसमें कितना अच्छा काम करना है, उसमें अपन चेक करते हुए रेडी तो मॉनिटरिंग करते हुए अपन जाना चाहिए। और अपन का जो बच्चे हो, परिवार हो, सबको उनको बैलेंस करते हुए सोसाइटी में काम करने के लिए निकले। सबको भी मैं ब्लेसिंग करती हूँ। और हमारा बहन आया, और अच्छा बुरा नहीं मानना, जो मैन यहाँ पर आए उन लोगों भी जरा जोरदार तालियां मारिए माँ, क्योंकि फेमिनिस्ट की जैसे मैं बात करेंगी ना, नेक्स्ट टाइम वो लोग नहीं आएंगे। क्योंकि घर से जिन महिलाओं को सपोर्ट मिलेंगे वो और ऊंचे जाएंगे। घर का परिवार सपोर्ट नहीं मिलेगा, जितना भी करने दो काम, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो परिवार का सपोर्ट आज जो भी दिया है, आपके पास आया है, यहाँ पर बैठा है, उन लोगों सबको सैल्यूट मेरी तरफ से। तो हमारा भाई लोगों, अपन का परिवार, मम्मी डैडी लोग हो, जो भी भाई हो, अच्छे सोसाइटी में अपन को आगे बढ़ाने के जो भी हो, इंडिया का महिला बरेली में नंबर 1 में आगे भी रहेगा। हमारा देश में पहला बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाने का काम भी हमें अपन ही करना चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करते हुए मुझे इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में बात करने का गौरव ने मुझे दिलाया। थैंक यू सो मच। एंड फिर आती रहूँगी मैं, क्योंकि मेरा माइंड में जो विचार है वो सब में शेयर करने में मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं आती रहती हूँ, हर जगह में मैं जाती रहती हूँ, यही मेरा काम है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for enlightening us by your words. And next, I would like to call on stage Dr. Geeta Singh, ma'am. Everyone, with the round of applause, please welcome her on stage for sharing a few words with all the awardees. आज के इस कार्यक्रम में मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरी बहनें जो राष्ट्र निर्माण करती हैं, संख्या पर नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी गौरव जी से बात हो रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में रहती हैं, लेकिन इसमें से प्रत्येक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। और आपके लिए मैं चाहती हूँ कि बहुत जोरदार तालियों के साथ हम स्वयं को कार्यक्रम का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के आयोजक मैं देख रही हूँ कि गौरव छोटी सी, मैं अभी उनसे मिली, लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी बड़ी सी आयु के व्यक्ति से मिलना होगा। और ये जो विचार उनके भीतर आया, निश्चित ही किसी माँ की प्रेरणा ही रही होगी, इसके पीछे माँ के ही संस्कार रहे होंगे। और उस संस्कार भाव के साथ इतनी बड़ी संख्या में जो उन्होंने शब्द दिया है अपने कार्यक्रम को, ऑनरिंग द कमिटमेंट, करेज एंड कॉन्फिडेंस, सम्मान उस मातृत्व का, उस सृष्टि के निर्माण के भाव का, उस संस्कार का, उस निर्मात्री का जिसके बिना सृष्टि की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो आज इस कार्यक्रम के हमारी बहन पुष्पलीला जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन के संघर्ष को भी बताया, और बहुत ही कहना चाहिए कि प्रेरणा, इतनी कम आयु में उन्होंने एक बड़े पद को सुशोभित किया, मार्गदर्शन दिया, और उसके साथ साथ एक माँ होने का कर्तव्य, एक गृहिणी का कर्तव्य, और होम मेकर, हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर जो होती है एक माँ, क्योंकि जब उस मेकिंग को ही एक संस्कार जनित प्रभाव से हम आगे नहीं बढ़ा पाए
तो किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है, बहुत सी बातें मैं सुन रही थी उनकी, और निश्चित रूप से समाज की सोच में कहीं अगर कोई कमी आई तो कहीं ना कहीं कौन सा ऐसा प्रभाव था, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि फेमिनिज्म के पश्चिम की जो ये सोच रही कि समानता, वास्तव में इस देश में समानता जैसा भाव किसी नारी शक्ति के अंदर आया ही नहीं। हम जिस सनातन आधार को लेकर चले हैं, जिस परिवार भाव को लेकर चलते हैं, और जिस परिवार के निर्माण की धुरी एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, एक पत्नी होती है, तो उसका महत्व क्या है? वहाँ पूरकता के भाव से जिया जाता है। वहाँ स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया जाता। वहाँ दोनों एक समान रूप से, हम जिस मूल्य को मानते हैं उसमें अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई है। अर्धनारीश्वर की सृष्टि की परिकल्पना बिना नारी और बिना पुरुष के, बिना प्रकृति और पुरुष के असंभव है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि नारी समानता के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर स्त्री जो अध्ययन केंद्र हैं बहुत से विश्वविद्यालयों में भी, उनमें समानता को लेकर बाजारवाद को बढ़ावा देना और उस दृष्टि से सोचना, मैं कई बार सोचती हूँ, और मेरे ख्याल से जो मेरी बहनें यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने भी उस चीज़ को भान किया होगा कि वास्तव में भारत वो देश रहा है जहाँ पर सदैव से नारी का एक सर्वोच्च स्थान रहा। उनको देवत्व की स्थिति में माना गया है कि मात्र वंदना सबसे पहले की जाती है, ईश्वर से भी पहले माँ को स्थान दिया गया है। लेकिन उस माँ के कर्तव्य को समझते हुए, उस निर्माण के भाव को समझते हुए, मेरी सारी बहनें यहाँ आज मौजूद हैं जो अपने कर्तव्य पथ पर उस भाव को लेकर बढ़ रही हैं कि हमें उस समाज का और उस देश का निर्माण करना है जो वास्तव में भारत सदैव से रहा है, और आप बखूबी उस कर्तव्य को निभा रही हैं। स्वामी विवेकानंद के वो शब्द मुझे याद आते हैं और हमेशा वो एक शक्ति भी देते हैं कि समाज जो है उसके लिए नारी और पुरुष दो पंखों के समान है, एक पंख से उड़ा नहीं जा सकता, और दोनों पंखों को उतनी ही शक्ति की जरूरत होती है। और वो शक्ति हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां, जैसे कि बहन ने कहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का ये नारा हम सुन रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने भी कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी ये शब्द थे, और जितने भी महान लोग होंगे उन्होंने ज़रूर इस बात को महसूस भी किया और संदेश भी दिया है कि अगर किसी राष्ट्र की स्थिति को समझना है तो वहाँ नारी की स्थिति को देखो तो समझ आएगा कि वो राष्ट्र कितना आगे बढ़ सकता है। और मैं ये देख रही हूँ और मुझे गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि गौरव ने उस गर्व को और अधिक बढ़ा दिया। देश भर से लगभग 22 स्टेट से यहाँ मेरी बहनें मौजूद हैं, और इतनी शक्ति के साथ जिसको देखो, मैं अभी सुन रही थी कि वो अपने कर्तव्य को लेकर और अपने आत्मबोध को लेकर राष्ट्र को जगाने के लिए और अपने उस भाव को अपने समाज से जोड़ते हुए अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कर्तव्यरत हैं। इससे ज़्यादा सुखद अनुभूति क्या होगी। जैसे हम देखते हैं कि ये बराबरी वाले भाव से मैं सहमत नहीं होती कभी भी। मुझे लगता है कि हम पूरक हैं एक दूसरे के, पूरक के भाव के साथ समझना है।
हमें बराबरी नहीं करनी है, क्योंकि माँ का स्थान बहुत ऊपर है, नीचे नहीं आना है ना, तो बराबरी क्यों करना। हमें बाजार का भाव नहीं लाना है, हमें निर्माण करना है। और उस निर्माण में वास्तव में स्वामी विवेकानंद के ये शब्द भी मुझे बहुत उत्तेजित करते हैं और बताते हैं कि भारत की स्थिति क्या रही, कि पश्चिम में नारी को मात्र पत्नी, स्त्री और भोग्या के रूप में देखा गया है, लेकिन भारत में उसकी छवि माँ की है। अतः दोनों की तुलना संभव ही नहीं है, और हिंदू समाज में माँ भाव से नारी की पूजा की जाती रही है, और उस भाव को, शक्ति को हमें समझना है। पश्चिम का मुंह नहीं देखना है कि वहाँ नारी स्वतंत्र है। वहाँ एक पुस्तक आई, उसके राइटर का नाम मैं भूल रही हूँ, कि फादरलेस अमेरिका। उस पुस्तक में क्या लिखा है, उस जब ये नारी आंदोलन चल रहे थे पूरे, और उसमें हम देख रहे थे कि पूरे विश्व की नारियां, 25 साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले ये आंदोलन शुरू हुए थे, जेंडर सेंसिटाइजेशन के नाम पर भी और नारी सशक्तिकरण के नाम पर। नारी से ज़्यादा सशक्त कौन हो सकता है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्द सहकर सृजन करती है और उसका निर्माण करती है। फादरलेस अमेरिका यानी कि जो वहाँ पर संतानें उत्पन्न हो रही हैं, उसमें उनके फादर का नाम नहीं है, या माँ केवल एक सिंगल अविवाहित लड़कियां या नारी बहुत सारे बच्चों की माएँ हैं, उनके पिता नहीं हैं या पिता का पता ही नहीं है। तो क्या ऐसी स्वतंत्रता हम चाहते हैं? वास्तव में परिवार एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उस परिवार के भाव के साथ हम अपने पूर्व में जाएंगे। अभी तो देखते हैं कि महानगरों में बहुत से अवसादों की स्थिति, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने भी वो कहानी सुनी होगी, बहुत न्यूज़पेपर्स में आई थी कि एक बेटा अमेरिका में बैठा है और उसको 2 साल बाद जब आता है तो अपनी माँ का कंकाल एक घर के अंदर मिलता है। हम उस समाज के पीछे चलने वाले नहीं हो सकते। आज की जो आवश्यकता है, अगर संस्कार कहीं पीछे छूट गए हैं, या हमारी शिक्षा पद्धति में कोई कमी आ गई है, या हम उस चीज को देख रहे हैं कि पश्चिम की तरफ दौड़ रहा है मन, तो उसे रोकने की आवश्यकता है। हमारी नारी शक्ति सर्वशक्तिमान है, और जब वो ठान लेती है तो आपको याद होगा कि भगनी निवेदिता भारत आई थी सब कुछ छोड़कर स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से, और उन्होंने कितनी शक्ति यहाँ की नारी शक्ति में भरी थी, क्योंकि वो जा ही नहीं पाई, क्योंकि उन्हें अपना देश भारत ही लगने लगा। क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पाया, उन्होंने जो अध्यात्म की शक्ति यहाँ महसूस की, संस्कारों की शक्ति जो यहाँ उन्होंने पाई, वो विश्व में कहीं नहीं है। तो ये जब कहा जाता है कि शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है, तो वास्तव में ये हमारी पहचान है, ये मेरी बहनों की पहचान है, जिन्होंने चाहे आज़ादी का आंदोलन हो उसमें बड़ी भूमिका अदा की, चाहे आज़ाद हिंद फौज में वो शक्तियां हो जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर देश को आज़ाद कराने में एक बड़ा रोल अदा किया हो, तो वो नारी शक्ति थी। महात्मा गांधी के आंदोलन को, किसी भी आंदोलन को आप देखिए, उनके पीछे नारी शक्ति खड़ी हुई थी। और एक शिक्षिका होने के नाते मैं ये भी कहूंगी कि गुरु की भूमिका में प्रथम गुरु माँ होती है, और जब वो प्रथम गुरु माँ उस बच्चे का निर्माण करती है कि जो आगे आने वाले कल को निर्मित करने वाला है, युगों का निर्माता बनने वाला है, तो मुझे याद आता है शिवाजी की माता जीजाऊ का, कि कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे भारत भर में, पूरे कहना चाहिए कि शक्ति को संगठित करके इस प्रकार से स्वतंत्रता की तरफ बढ़ना एक माँ प्रेरित करती है। तो बहुत सी बातें हैं, और भगनी निवेदिता के ये शब्द कहूंगी कि शिक्षा बहुत
महत्व रखती है। मेरी बहन छोटी सी बच्ची है वो, लेकिन उस 24 साल की बच्ची ने जब ये ठाना, मैं सुन रही थी, हर एक प्रत्येक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं आप, कि वो बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर किस तरीके से काम कर रही है। तो इससे ज़्यादा संतोष और प्रेरणा क्या हो सकती है कि इस देश की बच्चियां भी बहुत जागरूक हैं, बहुत बड़े परिवर्तन कर सकती हैं, बहुत बड़े आंदोलन कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से हम कहीं भी कमजोर नहीं है, बराबरी नहीं करनी है, क्योंकि हमें अपनी स्थिति को नीचे नहीं लाना है। वो देवत्व की जो स्थिति है, माँ का जो देवत्व है, माँ का जो सृजनात्मक रूप है, माँ के बिना परिवार नहीं बनता, किसी नारी शक्ति के बिना परिवार नहीं बनता। और राष्ट्र की परिकल्पना तो असंभव ही है, क्योंकि परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व। विश्व में हमारी पहचान क्यों है? क्योंकि यही कारण है कि नारी शक्ति वो प्रेरणा सदैव देती रही है। ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, जब कोविड का समय आया तो भारत के अंदर इतना असंतोष या इतना हानि नहीं हुई जितनी कि विश्व भर में हुई। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे हमारी दादी, नानी, माँ, बहन और बहनें, जिन्होंने अपनी उस भारतीय रसोई से ही प्राण बचा लिए, बहुत से लोगों के, अपनी बहुत सी जानों को बचा के रखा। और दूसरा उदाहरण मैं वो दूंगी, जब विश्व भर में मंदी का दौर था तो भारत में मंदी नहीं आई, क्योंकि हमारी जो सृजनात्मक माएँ बहनें हैं, उन्होंने उस मंदी को आने ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानती हैं कि परिवार को कैसे चलाना है। और उस भाव से मैं यही कहूँगी कि परिवार को समझना है और उन संस्कारों को कि ऐसी कहानियाँ घटित ना हो। एक दो न्यूज़ भी अगर भारत में ऐसी आती है तो चौंका देती है। जो हमने वो बम्बई वाली खबर सुनी थी कि 2 वर्ष बाद उसे कंकाल अपनी माँ का वहाँ मिला। तो ऐसे संस्कार और पश्चिम का और भागने की हमें तेजी नहीं करनी है। हमें अपने आप के संस्कारों को और अपने भाव को, क्योंकि विश्व भारत की तरफ ही देखता है, वो जब जब संकट में आता है। और भगिनी निवेदिता के ये शब्द, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिसमें राष्ट्रीय चेतना की जागृति नहीं हुई, जो राष्ट्रीय इतिहास को समझना ना सीख सकी हो, जिसे अपना देश कैसा है इसकी थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, उस महिला को यथार्थ शिक्षा नहीं मिली, ऐसा कहा जा सकता है। तो वास्तव में शिक्षा के वास्तविक अर्थों को समझने की आवश्यकता है। देश हमारा अद्भुत है, देश के अंदर शक्ति अपार है। और अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब मंगल की ऊपर जो हमारा मंगलयान पहुंचा था, उसके पीछे क्या आप सभी जानते हैं कि सारी बहनें जो वैज्ञानिक थी, बहनें ही थी। और आज तो सेना में, और अभी एक बहन बता रही थी कि बंगाल से जो पहली वो है, हाँ, तो कमीशन पायलट आर्मी में भी हैं। और वैसे भी जो वंदे भारत का जो आंदोलन चला और बहुत से लोगों को बाहर से बचाकर वापस कोविड के दौरान भारत में लाया गया, कि आप जानते हैं कि उसमें ज़्यादातर बहनें थी। एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था उसको लाने वाला बहनों का था। कहाँ कौन सा शब्द कहा जाए, और ये आज की बात नहीं है। जब याज्ञवल्क्य के साथ मैत्री संवाद करती है और ये कहती है कि मैं आपके साथ वन में जाऊंगी, मुझे उस चीज़ की चाह है जो आप पाने के लिए वन में जा रहे हैं, तो उस देश की ख्याति क्या रही होगी जो बड़े बड़े विद्वानों के बीच बैठकर उस भाव से संवाद कर सकती है कि बड़े विद्वान, बड़े शंकराचार्य जैसे विद्वान भी उसका लोहा मान जाए। तो ऐसी नारी शक्ति मेरे देश की है। और उस नारी शक्ति के लिए मैं आह्वान करती हूँ कि गौरव के दिए हुए ये शब्द, ऑनरिंग द कमिटमेंट, करेज एंड कॉन्फिडेंस, इस शब्द को सार्थक करते हुए इस कार्यक्रम को अपार सफलता मिले। और यहाँ जो मेरी बहनें मौजूद हैं उनसे प्रेरणा लेकर वो बहनें भी जो उनके अंदर शक्ति तो है लेकिन जागृत नहीं है, अपने आप को पहचान नहीं पा रही हैं, उनके भीतर की शक्ति जागृत हो। मैं ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं आयोजकों को। आगे के लिए इस प्रवाह में बढ़ते रहें और देश की मेरी बहनों को जागृत करते रहें, उनकी शक्ति को जगाते रहें। जैसा कि बहन ने कहा कि हनुमान अपनी शक्ति समझ ले तो क्या कर सकते हैं, तो मेरी बहनें भी उस अपार शक्ति से आंदोलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Please welcome the honorable guest, and I request to Mr. Gaurav kindly please felicitate with the flower and award our beautiful lady in the house, Meenakshi Joshi. And I request to Meenakshi ma'am kindly please hold the mic and share your words with the awardees. हम एक दूसरे के पूरक हैं, पुरुष और महिलाएं समाज में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत congratulations and thank you for honoring us, for respecting what we are doing for the society, for our family, for the generation, for the future of the country and the world. मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मनुस्मृति का सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगी। आप लोगों ने अलग अलग मौके पर सुना होगा मनुस्मृति की बहुत आलोचना होती है और ये कहा जाता है ये तो नारी विरोधी है। मैं इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किल करना चाहती हूँ। मनुस्मृति जिसमें कहा ही गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। आगे की पंक्तियां ये कहती है कि जहाँ पर नारी की आलोचना होती है, उनका ह्रास होता है, उनके साथ अशोभनीय व्यवहार होता है, वो समाज दुर्गति की ओर आगे बढ़ता है। आज के इस समय में, इस कलयुग में हमें केवल नारी को पूजा की वस्तु बनाकर नहीं रखना है। हम बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, हम एक दूसरे के पूरक होने की बात करते हैं, हम हाथ में हाथ डालकर, हाथ जोड़कर आगे बढ़ने की बात करते हैं। और ऐसी परिस्थिति को तभी जागृत किया जा सकता है, लाया जा सकता है, जब हम नारी को शिक्षित करते हैं। जब संविधान सभा बैठी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चर्चा कर रहे थे कि दलित समाज के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा समाज था जो शोषित था, जो वंचित था, उस समाज के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, अलग अलग विचार उस दौरान संविधान सभा में रखे गए। तब मूल रूप से एक बात निकलकर सामने आई कि अगर किसी समाज का उत्थान करना है तो उसे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना होगा। जब वो आर्थिक तौर पर संबल होंगे, समृद्ध होंगे, सुदृढ़ होंगे, तभी वो समाज में सिर उठाकर जीवन यापन कर सकते हैं। और तभी फिर आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई, एजुकेशन सिस्टम में, जॉब सिस्टम में इस आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आज उसी वंचित शोषित समाज के स्तर पर अगर आप महिलाओं को लाकर देखेंगे, देखिए मनुस्मृति का काल मैं आपको याद दिला रही हूँ, जहाँ पर महिलाओं की पूजा करने की बात है, जहाँ पर माँ के स्वरूप की पूजा की गई हो, जहाँ पर शिव भी शक्ति की आराधना करता हो, जहाँ पर विष्णु भी मातृशक्ति के आगे नतमस्तक होता हो, वो समाज में बड़ा सुदृढ़ था। समाज में महिलाओं का ह्रास होता गया, अलग अलग परिस्थितियां बनी, तो हम तो बड़े सुदृढ़ थे, समृद्ध थे। जैसा कि आपने भी कहा, मैम आपने भी कहा कि हमें पाश्चात्य संस्कृति से समझने की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी ही सनातन संस्कृति बड़ी समृद्ध है, हमें तो वहीं से सीख लेने की जरूरत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम बुद्धि की बात करते हैं, हम शक्ति की बात करते हैं, हम मातृत्व की बात करते हैं। हम कहाँ से सीखते हैं? अपनी सनातन संस्कृति से सीखते हैं। दुर्गा के जब हाथ खुलते हैं तो उन हाथों में विद्या भी होती है, लेकिन दुश्मनों के नाश के लिए वो शस्त्र भी धारण करती है, वो पुष्प भी हाथ में लेती है। तो उस स्वरूप जो मातृशक्ति का स्वरूप है, वही तो हमारा स्वरूप है। तो हम इतने सुदृढ़ और संबल तो पहले से ही थे, कुछ भूल गए थे,
कुछ को याद है और कुछ को याद दिलाने की आवश्यकता है, और इस कार्यक्रम के जरिए हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि आप आर्थिक रूप से अगर किसी को सुदृढ़ बना देंगे तो समाज में वो फिर वंचित और शोषित नहीं रहेगा। ठीक वही बात महिलाओं पर भी आधारित है। पहला, महिलाओं को शिक्षा दें। When you educate a woman, you educate a family, and when the family is educated, the society is educated. Your country is educated, your continent is educated. तो हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो बात कहकर गए हैं, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये बात कही है। जब आपकी माँ पढ़ी लिखी होंगी, जैसे मेरी माँ MA रही, तो उन्होंने हम तीनों भाई बहनों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। परिवार में चाहे कितने भी अप एंड डाउन होते रहे, लेकिन शिक्षा को प्राथमिकता दी। मैंने ये तय किया कि मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक मैं अपने पांव पे खड़ी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये रूट्स मैंने अपनी माँ से सीखे। क्योंकि जब आप समृद्ध होते हैं तब आपके पॉकेट में पैसा होता है, आपकी बात का भी वजन होता है। अरे नहीं, ये कुछ कह रही है, इसकी बात सुननी जरूरी है। आज सांसद महोदय हमारे बीच में है, अगर कुछ कहती हैं आप तो ये समाज सुनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये स्थान अर्जित किया है, उन्होंने अपनी शिक्षा से अर्जित किया है, उन्होंने अपने समाज में रहते हुए ये अर्जित किया है। परिवार में बात सुनी जाती है, आपके समाज में बात सुनी जाएगी। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है और अपने पांव पे खड़े होना बहुत जरूरी है। मुझसे बहुत सारे वरिष्ठ यहाँ मेरे बीच में बैठे हुए हैं। मेरी आयु इतनी नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई ज्ञान दूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कहीं त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा। लेकिन जब आप अपनी बेटियों की शादी की बात सोचें तो पहली बात उन्हें ये सिखाएं कि आप पढ़ें, अपने पांव पर खड़े हों, और उसके बाद फिर आप शादी की तरफ अग्रसर हों। क्यों? क्योंकि आप एक परिवार को संभाल सकेंगी, आप अपने बच्चों को संभाल सकेंगी, और जब बच्चे बड़े होंगे तो वो कहेंगे देखो मुझे मेरी माँ ने ये सिखाया था। तो शिक्षित होना इसलिए बहुत आवश्यक है, और शिक्षा के ध्यान के साथ साथ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने परिवार को भूल जाएं। मैम ने जैसा कि कहा कि हम एक साथ 10 काम कर सकते हैं। हमारे हाथ 2 दिख रहे हैं, है ना, लेकिन है 9 छिपे हुए हैं। मैं ऑफिस में बुलेटिन पढ़ते पढ़ते ब्रेक के बीच में फोन पे कॉल करके ये बोल सकती हूँ कि खाना ये बनाना, बच्चे को ये देना, टिफिन में ये जाना चाहिए। तो ये आप भी कर सकती हैं, आप अपने काम के साथ। वो हर महिला जो इस वक्त यहाँ सभागार में बैठी है, वो हर महिला अपने घर को चला रही है, अपने पारिवारिक संबंधों को भी चला रही है। मेरे हस्बैंड अखिलेश आनंद, वो खुद न्यूज इंडस्ट्री में है, उनके भी परिवार में किसको क्या तोहफे जाने हैं वो मुझे पता है। मेरे परिवार में किससे क्या संबंध है वो मुझे पता है, उन्हें नहीं पता है। इसलिए महिलाएं एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं, लेकिन उसमें पुरुषों का साथ होना भी आवश्यक है। As she said, that there will be a stress if there will be a discomfort at home. So once you get the support of your partner, your husband, your father, or your brother, you will rise and shine like anything. You will rise and shine like anything. You will not be only a twinkling star, you will shine like a moon which enlightens the whole world at night. You will be the moon. You will be the moon for your family and for the society. तो शिक्षित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे आपकी बुद्धि का विकास होता है। जब आप 4 किताबें पढ़ती हैं, 4 तरीके के समाजों को जानती हैं, तब आप ये समझती हैं कि हम अपनी संस्कृति से जुड़कर अपने परिवार को आगे साथ लेकर कैसे बढ़ सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। मैं इतना जानती हूँ कि अगर ये मैं कर सकती हूँ तो वो कोई भी कर सकता है। शीतल देवी, मुझे नहीं पता आप लोग स्पोर्ट्स में कितनी रुचि रखते हैं, लेकिन शीतल देवी जम्मू कश्मीर के गांव की किश्तवाड़ की कहीं की रहने वाली एक 16 साल की लड़की जो जन्म से दिव्यांग थी, उसके तो दोनों हाथ भी नहीं थे। She is the archer, Paralympian, gold medalist. She can do that. Why can't we? She can do that. She can be a gold medalist, Paralympian of the country.
Why can't we? We can excel in our field. और हमारी एक्सीलेंस से हमारी बहनें प्रेरित होंगी, जैसा कि आप लोग कह रही थी। मुझे देखकर मेरी बेटी प्रेरित होगी, मुझे देखकर मेरी दोस्त प्रेरित होगी, और एक दूसरे की प्रेरणा बनकर आगे बढ़ना है। एक दूसरे की टांग खींचकर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि औरतों के बारे में कहा जाता है ना, ओ माय गॉड शी इज सो बिची, कहा जाता है ना, ओ माय गॉड। मतलब मैं बड़ी टिपिकली कह रही हूँ कि साउथ दिल्ली की लेडीज ऐसी होती हैं, नॉर्थ दिल्ली की लेडीज ऐसी होती हैं। यू नो, बिहार में तो औरतों को सम्मान ही नहीं दिया जाता। अरे यूपी में तो घर की सजावट की वस्तु बना के रखा जाता है, घर में कुछ कहा ही नहीं जाता है। बहुत तरीके से कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जाता है ना, रीजन वाइज। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को देखो, वो तो अपने घर पर राज करती हैं, मणिपुर की है ना, नागालैंड की। बंगाल की औरतों को देखो, ममता बनर्जी को देखो, कैसे धारा प्रवाह बोलती हैं। ये जन्म से कोई कोख से सीख कर नहीं आता, ये कोई कोख से सीख कर नहीं आता, वो इस समाज में रहते हुए सीखता है। हम सीखते हैं, और हम सीखते सीखते आज यहाँ पर इस मंच तक पहुँचे। गौतम जी, आई नो दैट योर फाउंडेशन इज रजिस्टर्ड इन जयपुर। आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू राजस्थान फ्रॉम जोधपुर, अ स्टेट राजस्थान जहाँ अभी भी खम्मा घड़ी, हुकुम, ये संस्कार है ना, घूंघट वाली प्रथा भी है। लेकिन उन्हीं घूंघट की प्रथाओं को तोड़कर हम बाहर निकली हैं ना, हम अपने सिर पे आंचल रखती हैं, हम मंदिर जाती हैं, भगवान के सामने सिर नतमस्तक करती हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। लेकिन ये घूंघट, ये चूड़ियाँ, ये हमारी बेड़ियाँ नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। रानी पद्मावती जौहर कर सकती है ना, घूंघट के साथ कर सकती है। It is about choice. It is about choice. You want to keep it or you want to remove it. But संस्कार और आदर मन से निकलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, गौरव जी आप जानते हैं राजस्थान की संस्कृति क्या है, लेकिन उस संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हुए अगर जोधपुर के एक छोटे से शहर से निकलकर मैं जर्नलिस्ट बन सकती हूँ, यहाँ दिल्ली आ सकती हूँ, इंडिया टीवी जैसे एक रिनाउंड स्टीम ऑर्गेनाइजेशन में मैं अगर एक न्यूज़ एंकर की भूमिका निभा सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने जर्नलिज्म सोचा ही नहीं, ये कोई फील्ड होती है किसी को पता ही नहीं। हाँ, बस खबरें पढ़ते, अखबार पढ़ते, न्यूज़ चैनल देख लिया, आदमियों को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। ओह ओके, दिस मैन इज रीडिंग सम न्यूज़, इट मस्ट बी वेरी सीरियस बिजनेस। औरतें सीरियस बिजनेस के लिए नहीं लिया। अरे मदर टेरेसा ने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी ने क्या किया। आज हमारे कैबिनेट में निर्मला सीतारमण है, स्मृति ईरानी है, धारदार बोलने वाली नेता है, मैडम हमारे सामने बैठी हुई हैं। शी ऑल्सो बिलोंग्स टू पॉलिटिक्स। वुमेन कैन डू एनीथिंग, एनीवेयर, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द वर्ल्ड। वो कल्पना चावला बन सकती हैं, जैसा कि अभी मैम ने मून मिशन की बात की, वो साइंटिस्ट बन सकती हैं। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं करना है बस बस घमंड नहीं करना है, मेकिंग इट लाइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, औरतों को ये बड़ी फेमिनिस्ट है, अरे ये तो इसकी तो सोच ही फेमिनिज्म वाली है, ये तो पुरुषों को कुछ समझती नहीं है। नो, आई बिलीव इन जेंडर पैरिटी। वी मस्ट थिंक अबाउट जेंडर पैरिटी। महिलाओं को शिक्षित करना है, महिलाओं को समृद्ध बनाना है। शुरुआत घर से करनी है, घर से समाज तक जाना है, समाज से देश तक जाना है, और तभी हम आर्थिक तौर पर प्रगति कर पाएंगे। और जब हमारी आर्थिक प्रगति होगी, तब सही मायनों में वो जो कहते हैं ना कि ये ज़माना तो महिलाओं का है, कि बस शहर की महिलाओं का नहीं, गाँव की भी महिलाओं का जब ये ज़माना होगा ना, तब असली ताकत बनेगी। गांव में बैठने वाली सरपंच जब अपने विवेक से फैसला करेगी, ना कि अपने पति के दिखाए हुए विवेक से, तब ये समाज समृद्ध बनेगा। आप चर्चा करें, कौन अपने घर पे चर्चा नहीं करता? कोई भी महत्वपूर्ण फैसला, अरे कार भी लेने के लिए आप जाते हैं तो सोशल साइट्स पर जाकर चेक करते हैं ना, गूगल करते हैं ना कि सबसे अच्छी कार कौन सी है। तो घर पे चर्चा करिए, अपने पति को, अपने भाई को आप ग्रुप में रखिए, बात करिए,
क्योंकि उससे होराइजन्स मिलते हैं, आपको अलग अलग दिशाएं मिलती हैं, समझ में आता है। लेकिन फैसला फिर खुद के विवेक से करें, सुने सबकी, फिर करें अपने मन की भी, है ना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रबुद्धजनों के बीच में बैठकर अपनी बात रख सकूं। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से जो हम मैसेज लेकर जा रहे हैं हम वाकई अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करें। और एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी, हेल्थ, प्लीज़ कीप हेल्थ ऑन द प्रायोरिटी। मैं कोविड काल से मैं लोगों को हेल्थ के प्रति अपने चैनल के ही माध्यम से योगा विद स्वामी रामदेव, रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग इंडिया टीवी पर ये कार्यक्रम बीते 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, हर रोज़ सुबह 8 बजे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज हेल्थ इज रियली वेल्थ। अगर आप स्वस्थ होंगी तभी आप अपनी शिक्षा पे भी ध्यान दे पाएंगे, अपने परिवार पर भी ध्यान दे पाएंगे और तभी पॉकेट में पैसा भी आएगा, है ना। हेल्थ नहीं तो फिर कुछ नहीं। सो फर्स्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, योर एजुकेशन एंड देन योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, Gaurav ji. President of Purush Ayog, everybody. And I request to Mr. Gaurav Pratham sir, organizer of Women Conference 2023, kindly please felicitate Barkha ma'am with the flowers, with the bouquet and the award. I request to Barkha ma'am, kindly please come. जय श्री राम। यहाँ बैठे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मंच पे आने से पहले मुझे कहा गया है कि थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा क्योंकि समय की कमी है। और वैसे भी मेरी बहनें, मेरी मित्र मीनाक्षी जी ने सारी बातें तो कह दी हैं। अब इतना ज्ञान आ चुका है यहाँ पर कि मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। और इतनी खूबसूरत जो महिलाएं बैठी हैं उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। थैंक्स गौरव जी, ICAN Foundation for doing such a lovely program. ऐसे कार्यक्रम आप करते रहे, ऐसी महिलाएं और पुरुष कार्यक्रमों में आते रहे, उनकी ऊर्जा और बढ़ती रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अब रही बात विमेन एम्पावरमेंट की या महिला सशक्तिकरण, तो मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं इस देश की बहुत सशक्त हैं। और हमारी जो हिस्ट्री में आप अगर जाके देखें तो वर चुनने का हक महिलाओं को था। तो हम ऑलरेडी बहुत 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 सशक्त हैं, हमें किसी सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता नहीं। पुरुष को जन्म देने वाली हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं जननी हैं, हम महिलाएं मल्टीटास्किंग हैं, हम महिलाएं सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं। तो हमें कौन सशक्त करेगा? हाँ, फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि जब से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, तब से इसके ऊपर पे बहुत चर्चा हो रही है, बहुत काम हो रहा है। बेटियां वाकई ही, जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे, कुछ लोग हैं अभी भी, गांव देहात की बात कर रही हूँ, जहां अब भी सोचा जाता है कि बेटी को पढ़ा के क्या करना है, तो वहां पर भी बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे लोग परिवारों में भी ये काम चल रहा है जहां बेटियों को पढ़ाया जाता है और बेटियां आगे बढ़ती हैं। हर जगह पे आपने बेटियों को देखा है, वो पहुंच चुकी हैं, चांद तारों पे पहुंच चुकी हैं,
रॉकेट बेटियां चला सकती हैं, इंजीनियर बेटियां हैं, सैनिक आर्मी में बेटियां हैं। अब बताइए ऐसा कौन सा आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा कौन सा पॉलिटिक्स में जम के हिस्सा ले रहे हैं। कभी देखिए आप स्मृति ईरानी जी को, क्या ऊर्जा होती है उनके मन में, हमेशा हर मुद्दे पे कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अमेठी, किस प्रकार उन्होंने अमेठी को दिल जीत लिया, पूरे अमेठी का। तो मैं ये बड़े बड़े नाम आपके सामने इसलिए ले रही हूँ, कौन कहता है फाइनेंस नहीं संभाल सकती महिलाएं? निर्मला सीतारमण जी, आप जानते ही नहीं उन्हें। ये बड़े बड़े नाम, इंदिरा गांधी जी, कौन कहता है पॉलिटिक्स सिर्फ पुरुष कर सकते हैं? कितनी बढ़िया पॉलिटिशियन रही है वो, कोई मात नहीं दे सका उन्हें। तो मैं ये समझती हूँ कि यूथ एम्पावरमेंट की बहुत जरूरत है हमारे देश को। महिलाएं तो बहुत सशक्त हैं। प्रभु श्री राम का जैसे साथ सीता मैया ने दिया, ऐसा हर गृहिणी को अपने पति का देना चाहिए, अपने परिवार का देना चाहिए। जब परिवार या पति संकट में हो, वो है महिला, और वो महिला जो है प्रेरणा देती है समाज को आगे बढ़ने के लिए। परिवार रहेगा तभी तो समाज रहेगा, समाज रहेगा तभी तो देश बढ़ेगा। तो शिक्षित करिए, सबको शिक्षा का दान जरूर मिलना चाहिए। जब भारत में सब लोग शिक्षित होंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा, और देश की बढ़ोतरी में हम सभी को खुशी होगी, चाहे वो माताएं हो चाहे पिता हो। माता अगर कोख में बच्चे को 9 महीने रखती है, उसका योगदान जो है वो हम कभी नहीं भुला सकते। लेकिन पिता पूरी जिंदगी बच्चे को मस्तिष्क में रखता है, हर रोज उसकी वेलफेयर की कामना करता है, बच्चे के फाइनेंसेस को, बच्चे की बढ़ोतरी के लिए, बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा उसका ध्यान रखता है। तो एक पिता और माता दोनों का योगदान बहुत है, और सशक्त महिला वही है जो अपने परिवार पर ध्यान देती है, जो अपने परिवार को साथ लेकर चलती है। जब परिवार साथ बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये बात यकीनन आप बांध लीजिए, ये एक मंत्र है। अब ये मत सोचिए कि आप चाहे तारे की तरह, चाहे चंद्रमा की तरह चमकते रहिए समाज में, आपकी बहुत अच्छी भूमिका हो, लेकिन खुद का परिवार टूटा हो, ऐसा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे सनातन में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान जो सिखाया है वो सबके लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। बहुत सारी आपने अभी देखा होगा कि जब एक संकट आया था परिवारों के ऊपर, वैक्सीन बनी हमारे देश में, उसमें मैं अभी हाल में ही साइंटिस्ट को मिली थी, वैक्सीन वॉर की स्क्रीनिंग पे मुझे बुलाया गया था। वहां मैंने जो उस टाइम साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने के लिए गई हुई थी, 70% महिलाएं थी उस टीम में। याद होगा अभी कुछ दिन पहले इसरो की साइंटिस्ट वो साड़ी पहन करके, वो तस्वीर कितनी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, आप सभी को याद होगी वो तस्वीर। तो कितनी गौरवान्वित करती हैं हमारी देश की महिलाएं जो साइंटिस्ट हैं। तो कोई भी कम नहीं है, और महिलाएं पहले भी सशक्त थी, महिलाएं अब भी सशक्त हैं और कल भी सशक्त रहेंगी, क्योंकि हम सबको एम्पावर करना है एक दूसरे को। गौरव जी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन आज आप जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं या ये प्रोग्राम जहां जहां तक भी पहुंचे, खासकर महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ, एक दूसरे एम्पावर करिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, वो महत्वपूर्ण है। अगर कोई पॉलिसी आती है, अगर कोई अच्छी बात आपको पता चलती है जो सरकार के द्वारा बनाई गई हो पॉलिसी, या आपको कहीं और कुछ पता चलता है, उस महिला को आगे बढ़ने का कोई अवसर मिलता है, तो वो चीजें शेयर करिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून बहुत हो गया, अच्छी
या पॉलिसीज आप शेयर करेंगे, इस तरीके से रोजगार का अवसर शेयर करेंगे, उसका बैंक अकाउंट जिसका नहीं है, आपकी मेड्स जिनके बैंक अकाउंट अगर नहीं है, अगर इस तरीके से आप उनकी मदद करेंगे, जो आर्थिक मदद कर सकते हैं वो आर्थिक मदद करें, जो गरीब महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाइए, सबको साथ लेके चलना। ये मत सोचिए मुझे अवार्ड मिलना है, मुझे बस मैंने जाना है, अवार्ड लेना है, आ जाना है। अरे अवार्ड आपको दिया गया किसी अच्छे काम के लिए, उस अच्छे काम को आगे बढ़ाइए। अभी देखना आपने यहाँ पे मेरी जो बहनें आई थी वो किस तरीके से समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे सांसद महोदया हो या हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हुई जो भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, सभी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रही हैं। लेकिन ये मत सोचिए आपने अकेले करना है, जिस दिन आप ये चेन बना लेंगे, चेन बनाइए, सबको साथ जोड़िए, सभी महिलाओं को आगे बढ़ाना है, जिससे कि जो भी महिला ये सोचे कि मैं ये नहीं कर पाई, आप उसे ऊर्जा दीजिए। मेंटल हेल्थ का एक बहुत सीरियस इशू है जिसकी वजह से सुसाइड्स बहुत बढ़ रही है। महिलाओं को, वैसे तो महिलाएं बहुत मेंटली स्ट्रांग होती है, लेकिन जब फाइनेंसेस की वजह से कोई दिक्कत आती है या जब ब्रेकअप होता है तो दिक्कत आती है, उस टाइम पे शील्ड बन करके उनका साथ दीजिए। उनको वाकई ही ऐसा लगना चाहिए कि आप उनको कुछ ऐसी हेल्प कर रही हैं जिससे कि वो उससे बाहर आ सके। और मेंटल हेल्थ जो है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास साथ में कोई भी महिला जो आपकी जानकारी में है, वो चाहे सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो या वैसे, अगर उसे कोई दिक्कत है उसे काउंसिल करने की कोशिश करिए, राइट पीपल से कनेक्ट कराइए। मैं भी बहुत सारी काउंसलिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं कितनों की मदद कर सकती हूँ। आप सब लोग उनको काउंसलिंग करिए उनकी, जिससे कि वो उसमें से बाहर आ सके। और जो डिप्रेशन का शिकार होता है, ये बहुत अभी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें डिप्रेशन से पहले बाहर निकालिए। और ये काम, चूंकि महिलाएं जो है मल्टीटास्किंग होती हैं, ये काम महिलाएं बखूबी कर सकती हैं। यहाँ पे बैठे उनके जितने भी मेल पार्टनर्स हैं उनके लिए भी कर सकती हैं, मेल कलीग्स हैं, कई बार वो भी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं, परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, फाइनेंसेस को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। तो रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आप काम करिए। और 3 cheers फॉर ऑल women sitting here. होरे सभी को मेरा धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Thank you so very much. And next, once again, I would like to call Mr. Gaurav sir on the stage to felicitate our another guest in the beautiful day. I would like to call on stage Dr. Neelam Gupta, ma'am. Come on, with the round of applause, please welcome here Dr. Neelam Gupta. Request to Neelam ma'am, kindly please share few words with all. दिन में इतनी खूबसूरत महिलाओं को इस खूबसूरत मुकाम पर देखकर मुझे इतनी खुशी की अनुभूति हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। गौरव जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और इतनी सारी महिलाओं को जिन्होंने सफलता के एक मुकाम को हासिल किया है, उनको सम्मानित करने के लिए जो पहल की है, उसके लिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। हम सबको यहाँ इकट्ठा करके, और मैडम पुष्पलीला जी और गीता जी, डॉक्टर गीता और अभी मीनाक्षी जी हमारे बीच थी, उन्होंने इतने प्रेरणादायक शब्द से सबको संबोधित किया है। मुझे लगता है बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, और सबने अपने अंदर वो सारी बातें उतार ली होंगी, अच्छे से उतारी होंगी, क्योंकि वही बातें हैं जो हम महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करती हैं और समाज में एक अपना स्थान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और देश को आगे बढ़ाती हैं। मैं एक संस्था मैंने शुरू की 2000 में,
उसका नाम रखा आरोह फाउंडेशन। आरोह मतलब अ रे ऑफ होप। आरोह का मतलब ऑल्सो इट मीन्स असेंडिंग नोट्स ऑफ म्यूजिक, जैसे सारे गामा पादा निसा होता है, आरोह अवरोह। और ये एक जेंडर न्यूट्रल शब्द था, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यह शब्द मेरे दिमाग में आया था जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब एक लड़की को मैंने देखा जो भीख मांग रही थी। बहुत ठंड थी दिल्ली में, मैं स्कूल जा रही थी। उसको मैंने अपना स्वेटर उतार के दिया, क्योंकि हम लोग तो 2-2, 3-3 स्वेटर्स पहन के स्कूल जाते हैं और बड़े अच्छे से रहते थे। तो मुझे दया आई उसको, बच्ची को देखकर, उसे उतार के दिया। मुझे अच्छा लगा कि चलो एक बच्ची को थोड़ी मदद हुई। लेकिन जब अगले दिन वापस मैं उसी रास्ते से स्कूल जा रही थी, तब मैंने देखा वो बच्ची फिर ठिठुर रही है, बिना स्वेटर के वहीं खड़ी है। तब मैंने पूछा, बेटा कल दिया था तुमको, क्या हुआ? तो कहने लगी, मेरे पापा ने ले लिया, बेच दिया, क्योंकि अगर मैं स्वेटर पहन के फिर से खड़ी होंगी तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा। तो ये हालत थी। आज की बात नहीं है, करीब हो गए 40 साल, पता नहीं 35 साल। लेकिन स्थिति ये थी कि गरीबी थी। गरीबी में हम सबको अपने अधिकार नहीं मिलते थे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही थी। तो वो एक ऐसा ट्रिगर था मेरे दिमाग में उस दिन जो हुआ। तब से सोचा कि कभी इस लायक होंगे तो मदद करेंगे, शायद समाज में आगे बढ़ के महिलाओं की, बच्चों की, या जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मैं मदद कर पाऊंगी। तो दिमाग में वो जो कीड़ा था या बीज कह लीजिए, वो बैठ गया था। परंतु मैं अच्छे परिवार से थी, माता पिता पढ़ाना चाहते थे तो पढ़ लिया, MSc किया, PhD किया, अपने लायक बन गए। परंतु पैसा इतना नहीं था, कैसे मदद करें सबकी। तो ये इस प्रकार के हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। हम चीज़ें करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। लेकिन हमें हर चीज़ को, जो भी हमें करना है, उस पर अडिग रहना चाहिए, सोच में बना रहना चाहिए कि अपना पर्पस अगर मिल गया है, शायद मुझे उस दिन अपने लाइफ का पर्पस मिल गया था, परंतु उसको करते करते शिक्षा ली, उसके बाद अपना एक बिजनेस सेटअप किया, थोड़ा कमाई का जरिया शुरू किया। लेकिन हमारे समाज में लड़कियों को शादी भी करनी होती है। माँ बाप की इच्छा थी कि शादी करो और टाइम पर करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय। तो 24 साल में शादी हो गई, शादी की जिम्मेदारियाँ निभाई, बच्चे हुए, बच्चों की जिम्मेदारियाँ निभाई, परिवार को साथ लेके चले। जैसे कि अभी सबने बताया कि एक परिवार हमारी कड़ी है, हमारे जीने का एक आसरा होती है। पति भी हमारे साथ, उनको लेके चलना है, दोनों पूरक हैं, एक लाइफ बनानी है, बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है। सब कुछ चलते हुए कहीं ना कहीं मेरा सपना भी बीच में खो रहा था। पैसा कमा रहे थे, काम चल रहा था, आगे बढ़ रहे थे, बच्चे बढ़ रहे थे, परंतु एक जो छोटा सा दिमाग में हर समय रहता था, जो करना चाहते थे, जो लोगों की मदद करना चाहते थे, शायद कहीं मिस हो रही है। तो 2000 आ गया। अब मुझे लगा कि बहुत लेट होता जा रहा है, मेरी भी एज भी बढ़ती जा रही है, बच्चे बड़े हो गए, अब तो कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। तब जाके मैंने ये जो आरो नाम उस समय रखा था, आरो फाउंडेशन की शुरुआत की। उस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया और आज की डेट में आरो फाउंडेशन में 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 50% से ज़्यादा शायद महिलाएं हैं। देश के हर स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक करीब 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं की मैं आरो फाउंडेशन के द्वारा मदद कर चुके हैं हम लोग, जिसमें शिक्षा है, उनको आर्थिक उन्नति देना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनके लिए बोथ सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर दोज वुमेन एंड ऑल्सो गिविंग देम फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ में वर्क करना। मतलब ये है कि महिलाओं की हर स्थिति में मदद करना। और अभी 2 साल पहले हमने एक और कार्यक्रम जोड़ा जिसमें शी वेंचर्स नाम का कार्यक्रम है। जैसे गौरव जी शी इंस्पायर्स कर रहे हैं, ऐसे शी वेंचर्स हैं। हमारी बहुत सी महिलाएं, लड़कियां हैं जिनको बिजनेस शुरू करने का मौका नहीं दिया जाता। अक्सर पेरेंट्स बोलेंगे शादी के बाद करना, अभी शादी हो जाए तब करना। वो कैसे, अगर उनके मन में बिजनेस शुरू करने की एक उम्मीद है या एक इच्छा है, तो वो कैसे करें, उनको आगे ले जाना। हमारी एक लड़की है महिला जो कि शार्क टैंक से 75 लाख रुपए का फंड लेकर आई, उसको हमने बिजनेस शुरू करने में मदद की। तो इस प्रकार महिलाओं की मदद करने का कार्य आरो फाउंडेशन कर रहा है, परंतु वह काफ़ी नहीं है। ये सब एक समझिए कि समुद्र में एक बूंद की तरह हम लोग मदद कर पाते हैं।
परंतु आप जो हैं एक एक महिला वे समुद्र में बूंद नहीं, वह बूंद में समुद्र है। तो अपने आप में आप जितनी महिलाओं की मदद कर सकें, जितने लोगों को आगे बढ़ा सकें, जैसे कि सभी ने कहा है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम औरों की मदद कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पर एक सफलता के मुकाम पर हैं, तो अपनी मदद तो आप कीजिए ही, आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए। परंतु आपकी राह में जो भी महिलाएं, जो लड़कियां या इवन पुरुष भी, जो भी ऐसा दिखे कि जिसको मदद की ज़रूरत है, हमारी एक छोटी से 2 शब्दों से या 2 पैसों से या जैसे भी हम लोग मदद कर सके, कोई आगे बढ़ सकता है तो उसकी मदद कीजिए। और यही हमारा समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा, सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। एक छोटी सी बात, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं अभी, जो मेरे से पहले सब लोग बोल के गए हैं, उन्होंने बहुत प्रेरित किया है। परंतु जो एक कमी मुझे हमारी महिलाओं में लगती है वो ये है कि वो बहुत जल्दी छोड़ दे, गिव अप कर देती हैं। क्योंकि हमारे, इसलिए नहीं कि उनमें कुछ कमी है, इसलिए कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। मैंने भी किया, क्योंकि मुझे लगा कि अभी नहीं, अभी बच्चे बड़े हो जाएं, अभी परिवार ठीक हो जाए, अभी करेंगे, तो हम लोग छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग परिवार की तरफ ध्यान ना दें, बच्चों की तरफ ध्यान ना दें। हम लोग स्लो हो सकते हैं उस पीरियड में, क्योंकि हमारी भी प्रायोरिटीज़ हैं। हमें लाइफ में जैसे कि जननी है, हम परिवार को बढ़ाना है, मदद करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को देखभाल करनी है। तो बहुत सी जो महिलाएं ऐसी आजकल हैं जो बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं कि हमें तो परिवार को देखना ही नहीं, कोई भी देखे, कुछ भी करे, पुरुष देखे, तो हम लोग आगे अपना सिर्फ कैरियर बढ़ाएंगे। वो भी एक अप्रोच मुझे लगता है बहुत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है। कई महिलाएं बिल्कुल छोड़ देती हैं कि हम तो सिर्फ परिवार ही देखेंगे, जो भी कर रही हैं, जितना आगे बढ़ी हैं उसको छोड़ देती हैं। वो भी एक दूसरी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है। तो हमें कहीं ना कहीं मॉडरेशन को लेकर परिवार को भी देखना है, खुद को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग मल्टीटास्कर्स वैसे भी हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखिए, अपने परिवारों को भी बढ़ाइए, स्वयं को भी आगे बढ़ाइए और देश को भी आगे बढ़ाइए। यही मेरी आपको एक सलाह कह लीजिए, बस डोंट गिव अप, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से एट एनी स्टेज। करते रहिए, बढ़ते रहिए, आज एक काम कर रहे हैं, कल दूसरा कर लीजिए, परंतु अपने एक पहचान बनाइए और लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन है। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, फिर से इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dr. Neelam, ma'am, for motivating all the women. Thank you so very much. And everybody, now is the time for panel discussion. And I would like to call all the panel member on the stage. Director of Kidzi Play School. Everybody with a round of applause, please welcome. Next, I would like to call on stage Shriyal ma'am. Founder and Director of Panoptic Solution. Next, I would like to call on stage Karishma Jain, co-founder of Bull Vision FinTech India. Next, I would like to call on stage Dr. Satya Sharma, lifetime member of Human Rights Protection Commission India.